الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. اذكر وتدبر بما يتلوه لساني من كتابك والفهم له والمعرفة بمعانيه والنظر في عجائبه والعمل بذلك ما بقيت إنك على كل شيء قدير. اے اللہ، اس کتاب میں سے میری زبان جو پڑھتی ہے اس میں مجھے تفکر، تدبر اور اس کی سمجھ عطا فرما، اور اس کے معنوں اور عجائبات کی پہچان کروا، اور جب تک میں زندہ رہوں اس کے مطابق عمل کروں۔ بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ ایک بار سب درود شریف پڑھ لیں۔ جی، آج انشاءاللہ ہم جو تیسرا لیسن مدینہ عربک بک 1 کا سٹارٹ کرنے والے ہیں، اس میں ہم سیکھیں گے کہ ایک نکرہ اسم کو اگر ہمیں معرفہ بنانا ہو تو اس کے لیے کیا طریقہ کار اختیار کیا جاتا ہے، کون سے ایسے دو حروف ہیں جس کو نکرہ اسم کے ساتھ لگانے سے وہ معرفہ میں تبدیل ہو جاتے ہیں، اور جب وہ معرفہ میں تبدیل ہوتے ہیں تو پھر اس نکرہ اسم کے معرفہ بننے کے بعد کیا تبدیلیاں آتی ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے سلمہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام جی، سبق کا کیا نمبر ہے، پڑھیے۔ الدروس الثالث الدرسس، دروس الدرس جمع الثالث ہو جائے گا۔ ہاں جی، الدرس الثالث، تیسرا سبق۔ جی، کیا لکھا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے سامنے؟ جی میم، بیتن، بیتن۔ ہاں البیت، جی، سب سے پہلے آپ فوکس کیجئے بیتن پر۔ اسم ہے، اسم کیا ہوتا ہے؟ کسی بھی جگہ، جی چیز، شخص کا نام ہے نا۔ جی میم، بیتن کون سا ہاں، اسم ہے، معرفہ یا نکرہ؟ معرفہ، نہیں میم، بیتن نکرہ، معرفہ اسم، نکرہ نکرہ، اسم۔ جی نکرہ ہے میم۔ ہاں جی، اور آگے آپ کو ایک اور اسم لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، وہی اسی کو پڑھیے دوبارہ۔ البیت، البیتو، اس اسم کی کیا حالت ہے، کیا وسعت ہے اس کی، نکرہ یا معرفہ؟ یہ معرفہ ہے میم، معرفہ ہے۔ کیسے آپ نے پہچانا کہ یہ معرفہ ہے؟ کیونکہ یہاں پر ال لگ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، ہاں، ال کے ذریعے اس کو ہم نے معرفہ بنایا ہے، اور اس ال کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ال کو، اس یہ ہوتا ہے معرف باللام۔ ہاں، معرف باللام اسم، ہاں جی، جب ال لگ جاتا ہے کسی اسم پہ تو آپ کہتے ہیں معرف باللام، یعنی وہ اس اسم کو آپ نے ال کے ذریعے معرفہ بنایا ہے۔ تو ہم نے جی ابھی کیا سمجھا، ماشاءاللہ آپ لوگ پڑھ بھی چکے ہیں کہ عربی زبان میں وسعت کے اعتبار سے اسم کتنی طرح کا ہوتا ہے؟ وسعت کے اعتبار سے وسعت کے اعتبار سے، دو طرح کا ہوتا جی میم، ہے نا؟ کسی بھی اسم کی وسعت دو طرح کی ہوتی ہے نا، یا تو وہ ہاں، نکرہ معرفہ ہوتا یا ہے نکرہ، یا پھر وہ معرفہ ہوتا ہے، جی ایسے میم، ہی ہے نا؟ ٹھیک جی ہے، میم، یاد رکھیے کہ عربی زبان میں استعمال ہونے والا طور پر نکرہ میں شمار ہوگا جب جی، تک اس کا معرفہ ہونا ثابت نہ ہو جائے، ہوں، اور معرفہ ہونا ثابت ہوتا ہے اس وقت آپ جہاں تک پڑھ چکی ہیں اسی بات کو بس میں بتاؤں گی، باقی تو اور بہت سی وجوہات ہیں، لیکن جب ہم اس کو الف لام کے ذریعے، ال کے ذریعے معرفہ بناتے ہیں تو اب اس کا معرفہ ہونا ثابت ہو گیا، لیکن بنیادی طور پر ہر اسم کو آپ نکرہ ہی تصور کریں گی، ٹھیک ہے؟ جی، جب آپ نے بیتن پر ال داخل کیا تو آپ نے اس اسم میں کیا تبدیلی کی؟ اس کا تنوین ہٹا کر اس کو سنگل پیش، ایک ہی
हाँ लगा जी, दिया मैम। तनवीन हल्की कर दी। ठीक है, कहते हैं जी तनवीन का मैम। हल्का करना, यानी दो से एक कर दिया तो उसका आपने हल्का किया एक ना कर उसको। दिया। तो जब भी जी। आप इसम को अलिफ लाम के जरिए मारफा करेंगी तो दूसरा काम आपने उसकी तनवीन हल्का करना है, लाजमी। अगर आप यहाँ पर दो लगा जी देंगी मैम। तनवीन तो ये गलत हो जाएगा। अल बैतुन अगर आपको कहीं लिखा हुआ नजर आएगा तो वो गलत होगा। ठीक है, हमेशा अल के साथ तनवीन हल्की हो जाएगी, बैतुन से अल बैतू हो भाई। जाएगा। ठीक है, जी मैम। ठीक है। अब देखिए हमने पढ़ा ये अल दाखिल किया। अब सबसे पहले हम ये समझ लें कि ये अल में अलिफ क्या कहलाता है, इस अलिफ का क्या नाम है और इस लाम का क्या नाम है, हमें ये पता होना चाहिए ना। जी। ठीक है, क्या आपको अंदाजा है कि हम इस अलिफ को क्या कहते हैं, हमजा जो नजर आ रहा है हमें, नहीं दरअसल मैम। हमजा, इसको हम क्या कहते हैं? अच्छा, चले नहीं। आप म्यूट ही अनम्यूट ही रहिएगा, मैं जोहरा से पूछती हूँ। ठीक है, जी मैम। जोहरा, जी ये जोहरा, जी। इस हमजा को हम क्या? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, ए हमजा को हम लोग हमजतुल वस्ल बोलते हैं। शाबाश, ठीक है उम्मे सलमा, याद रहेगा। जी मैम। जी मैम, वो डाउट था अल, मैम, यही बोलना। हाँ ठीक है, वेरी गुड। अल जिससे आपने नकरा इस्म को मारफा किया अल के जरिए, उसमें इस हमजा को हम हमजातुल वस्ल कहते हैं। जी और मैम। इस लाम का क्या नाम होता है? लाम तारीफ बोलते हैं इसको। शाबाश, इसका नाम होता है लामे तारीफ। ठीक है, हम्म। जी अब आपको अच्छी तरह से याद रहना चाहिए कि ये हमजातुल वस्ल है और ये लाम लामे तारीफ कहलाता है। ठीक है, और जब आप इस जी अल मैम। को नकरा इस्म पर दाखिल करती हैं तो वो मारफा स्टेट में चला जाता है, उस इस्म की वसअत मारफा हो जाती है और तनवीन हल्की हो जाती है। ठीक है, जी जी थैंक यू मिस सलमा। जोहरा, जी। अगला इस्म अ, पढ़। कलमुन और अल हम्म, कलमु। हाँ जी, अब कलमुन हमारे पास फिर नकरा इस्म, उसकी जी, वसअत नकरा, और जब हमने उसको मारफा करना चाहा तो हमने फिर से अल दाखिल करके दाखिल सिंगल किया हरकत में कर दिया, और तनवीन हल्की कर हल्का दी। कर। जी। इसी तरह आगे दो अस्मा हैं, वो भी पढ़ दीजिए। किताबुन और अल हम्म, किताबु। ठीक है। जमलुन अल हम्म, जमलु। शाबाश, जमालुन अल जमलु, वेरी गुड। आगे आपको एक जुमला लिखा हुआ नजर आ रहा है, जी। पढ़िए उसको जरा। अल कलमु मकसूरुन। हम्म, क्या मतलब होगा इसका? कलम टूटा है, टूटा हुआ है। शाबाश, कलम टूटा हुआ है, जुमला जी इस्मिया है। जी। इसमें मुझे बताइए मुब्तदा और खबर कौन कौन सी है? हाँ, इसरुन खबर है। ठीक है, मुझे बताइए कि मुब्तदा और खबर में किस किस तरह से मुताबिकत होना जरूरी जी, है? इसमें हमको ये देखना चाहिए कि जिन्स और अदद में दोनों में मुब्तदा और खबर में मुताबिकत होना चाहिए। ठीक है, और? और वसअत के लिहाज से हमको मुब्तदा मारफा में होता है और खबर शाबाश, अमूमन नकरा होता है। और शाबाश, एराब के हिसाब से मुब्तदा और खबर दोनों हालत रफा में रहते हैं। रफा में होते हैं, माशाल्लाह, बिल्कुल ठीक, जी बेहतरीन। अब जी अगर मैं आपसे कहूं जी। कि इस जुमले को जिसमें जिन्स वाहिद है, मुब्तदा हाँ की है ना, और जी। खबर की भी जिन्स वाहिद है, इसको मुसन्ना में तब्दील कर दें, ओके। मुब्तदा को मुसन्ना बना दें। अल कलमानी हम्म, और मकसूरन का हम्म, मकसूरानी। शाबाश, बिल्कुल ठीक। हाँ मकसूरानी, जी, ठीक ठीक है। अल जी कलमानी मकसूरानी, ठीक है, जी ये आपने जी मुसन्ना। अब जी आप मुब्तदा को जमा में लेके चले जाइए। जी। अल कलमूना हम्म, मकसूरूना। कलमूना नहीं, इसकी अकलामुन, सॉरी, नहीं। अकलामुन, जी जी। अकलामुन, अकलामुन। अब मुझे देखिए अकलामुन की वसअत क्या है, जब हम मुकस्सर है ना, इसकी वसअत क्या है? वसत नकरा है, नकरा। हाँ। नखरा है, तो ये मुब्तदा बन सकता है? नहीं नहीं, उसको नहीं, मार्फा होना है। कीजिए मार्फा। ओके।
बनाइए मार्फा। कलम अकलामुन को तो अल लगा कर करना है। हाँ जी, अल अकलामु, ठीक है। जी अल अकलामु, आपने तनवीन जी हल्की कर दी, अल लगा दिया, अल के जरिए मार्फा कर दिया। अब आपने मुब्तदा तो कर दिया मारिफा, खबर को क्या करेंगी? खबर को हम लोग नकरा में रहना है। ठीक है, बनाइए इसको, अल अकलामु। अल अकलामु को खबर कंटिन्यूशन पूछ रहे हैं आप? जी अकलामु आपने मुब्तदा बना दिया, आप खबर भी तो लगाइए आगे। मक्स कलम टूटे हुए हैं, तो आप टूटे हुए हैं को क्या लगाएंगी अल आगे? अकलामु अल अकलामु मकसूरानी मकसूर, मकसूरानी क्यों? चलिए मकसूरूना, मकसूरानी। ओके जमा है ना, ठीक है। अच्छा, आपने पहले कहा मकसूरानी, फिर आप कह रही हैं मकसूरूना। अब ये जमा में है ना, तो अच्छा, अब आपने मुब्तदा और खबर की जो अदद में आपने सेम इसको, अदद में आपने इसको मुताबिकत होना है। मुताबिकत की। चलें हम शाहीना को बुलाते हैं। थैंक यू जोहरा, म्यूट जी कर लीजिए। जज़ाकल्लाह खैर। शाहीना। जी अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। मुझे बताइए, ये दोनों जुमले जो अभी जोहरा ने बनाए हैं, ये दुरुस्त हैं या गलत हैं? जी बाजी, ये अल कलमु वाली अल कलमु, ये अल कलमानी मकसूरानी दुरुस्त है। और हम्म, ये जो है अल अकलामु, उसके बाद जो हम लाएंगे तो वाहिद मोहन्नस का लाएंगे। शाबाश, मकसूरत वाहिद मोअन्नस की खबर आएगी और वो क्या होगी? मकसूरतुन, अल अकलामु मकसूरतुन। हाँ जी, मकसूरतुन। क्यों लेकर आई आप वाहिद मोअन्नस की खबर? इसके गैर आकिल की जमा शाबाश, जी, गैर गैर आकिल की। आकिल की, गैर आकिल की जमा के साथ हमने पीछे प्रैक्टिस करते हुए आ रहे हैं, हम लेसन 1 में भी लेसन 2 में भी, कि हमेशा खबर वाहिद मोअन्नस की आएगी। ठीक है, इस चीज को हमने भूलना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं भूलना है। चलें आगे पढ़ें, ये क्या लिखा है? जी मैं पढ़ूं? जी जी, आप ही को कह रही जी। हूँ। अल बा अल बाबू मफ्तूहुन। मफ्तूहन, क्या तर्जुमा होगा? अ, दरवाजा खुला हुआ हम्म, है। खुला दरवाजा खुला। हुआ है, इसकी जमा बना दें। अल अब्वाबु हम्म, मफ्तूहतुन। शाबाश। अब आपने जैसे ही इसकी जमा बनाई, अल अब्वाबु गैर आकिल की जमा मुब्तदा बन गई, तो खबर वाहिद मोअन्नस मफ्तूहुन में आपने मफ्तूहतुन कर हतुन। दी। शाबाश, बिल्कुल ठीक, परफेक्ट हो गया। ये कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर होना चाहिए, ये भूलना नहीं चाहिए आपको। थैंक यू शाहीना। आइए साइमा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी साइमा, आगे क्या है हमारा लिखा यस हुआ? मैम। अल वलदु जालिसुन। हम्म, मैम तर्जुमा भी करूं? जी लड़का बिल्कुल जरूरी है। बैठा हुआ है। लड़का बैठा हुआ है और वल मुदर्रिसु वाकिफुन, और हम्म, उस्ताद साहिब खड़े हैं। हाँ जी। अच्छा, अब मैं आपसे कहूं कि मुब्तदा और खबर, अब आपको माशाल्लाह पहचान तो बहुत अच्छे से है मुब्तदा खबर दोनों की, ऐसे ही है ना? यस मैम। मुब्तदा की जिन्स क्या है? मुब्तदा मुजक्कर है और मुजक्कर है। खबर भी हाँ, मुजक्कर है। जिन्स में भी उसको मुताबिकत रखनी है। मैं आपसे कहूं कि मुब्तदा को मुअन्नस कर दीजिए। अ, ठीक है मैम। हम्म, क्या होगा मुअन्नस, बनाइए इसकी। वलदू मैम लड़का, ठीक है। लड़का और लड़की का लड़की मुअन्नस की क्या, लड़की की अरबी क्या होगी? अ, मैम औरत की इमरातुन औरत और वलदातुन खातून होती है ना, लेकिन वल लड़की की क्या होती है? अ, हम क्या कहते हैं कि फलां, लड़के को कहते हैं फलां इब्ने फलां, बिनते। बिन्तुन। यस मैम, ठीक है। मैं वो इब्नों की कर अब रही थी और लड़के की अलग से सोच रही थी। नहीं, इसको भी आप लड़का ही कहेंगी ना, तो बिन्तुन हो यस गया। मैम ठीक बिन्त। है, अब आपने इसको बनाना है मुब्तदा, तो क्या करेंगी? अल बिन्तु शाबाश, आपने महारत जालिसातुन। बिल्ला।
हाँ जी, जाली, क्यों सातुन क्यों किया आपने? मैम जालिस जालिस आपने वाहिद ही लेकर आना है ना, जालिस सतुन। यस मैम जालिस सतुन। हाँ, अगर आप जालिस सातुन करेंगी तो फिर वो तो क्या हो जाएगा? यस मैम जालिस सातुन, वैसे हरकत को लंबा कर दिया मैंने। हाँ, गलत किया ना, फिर वो हाँ प्रोनाउंसिएशन में देखिए, और वो गलत फिर हो जाता है। लेट हो गई ठीक है है ना, ठीक सुनने है। में, है यस ना, ऐसा लगा कि यस आपने जमा बना दिया, लेकिन यस जालिस मैम। सतुन। ठीक है, यस मैम जालिस। जालिस सातुन ठीक हो गया। अगले जुमले को भी मोनस बना दीजिए, मुब्तदा को। वल मुदर्रिसातुन वाकिफातुन। वल मुदर्रिसतुन, सातुन यस नहीं, वल वल मुदर्रिसातुन। मुदर्रिसतुन। ठीक है। यस यस अच्छा, मैम। अब मैं आपसे कहूं कि मुदर्रिसतुन, आपने वाहिद मुब्तदा रखा, जमा कर दीजिए मुब्तदा को और जुमला मुकम्मल कर दीजिए। वल मुदर्रिसातुन शाबाश। वाकिफातुन। हाँ जी, वेरी गुड, परफेक्ट हो गया। और, और अगर मैं कहूं कि यहाँ पर आपने जो अल बिंतु किया यस था, उसकी भी जमा बना दीजिए, तो कैसे अल बनाएंगी? बिनातुन जालिसातुन। हम्म, हाँ जी, बनातुन जबर के साथ आएगी जमा। यस मैम। ठीक। तो हमने जब वेरिएशंस करनी है तो देख के समझ के करना है। अब आपने यहाँ पर जब जमा बनाई, अल बनातु यस मैम। जालिसातुन, तो आप अल बनातु के साथ जालिसतुन क्यों नहीं लेकर आई? वाहिद मोनस क्यों नहीं लाई? मैम चूंकि ये आकिल था और हाँ इसके साथ उसी के मुताबिकत का सीगा लगना था जी, जमा का। क्योंकि आकिल की जमा है, इसलिए हमने आराम से खबर को भी जमा मोनस कर दिया। अगर गैर आकिल होता तो फिर आप तो वाहिद मोनस। वाहिद मोनस आना था। परफेक्ट हो गया, बहुत अच्छे, यस माशाल्लाह। आई होप कि आप लोगों को ये छोटी छोटी सी बारीकियां हैं, लेकिन बहुत मैम इम्पोर्टेंट। इवन आता है, लेकिन आपसे सीखने का मजा अलग है। अच्छा, आप थैंक यू। खुद। आपकी हाँ क्लियर हो जाता है ना यस मैम। कॉन्सेप्ट। असल में मेरी मैम कोशिश ये आप होती है हर कि आप तरह लोगों का से पूछ कॉन्सेप्ट लेती हैं तो वो बैठ जाए, वाकई क्लियर हो जाता क्लियर हो जाता है। चलें, अच्छी बात है, आप लोगों का शौक है। थैंक यू साइमा। उम्मे माज, आइए। जी बाजी। अब हमारे सामने दो जुमले लिखे हुए हैं, पढ़िए। अल किताबु जदीदुन वल कलमु कदीमुन। शाबाश। और तर्जुमा। अल जी, इसका तर्जुमा करें। जी जी, कीजिए। जी, अल किताबु जदीदुन, किताब नई है और कलम पुराना है। पुराना है, ठीक है। अल किताबु मुब्तदा को मुसन्ना कर दीजिए। अल किताबानी जदीदानी। गुड। इसी को जमा अल में कर दीजिए। कुतुबु जदीदतुन। शाबाश, वेल डन। वाहिद मुन्नस की आप यहाँ पर ले आई। इसी तरह अगर मैं अल कलमु को अल अकलामु कर दूं तो यहाँ खबर क्या आएगी? कदीमतुन। कदीमतुन। परफेक्ट हो गया, आगे चलिए। अल हिमारु सगीरुन वल हिसानु कबीरुन। हम्म, गधा छोटा है और घोड़ा बड़ा है। बड़ा है। अब अगर हम इसको जमा कर दें, हिमार की क्या होती है? हुमरुन, ये हमने पढ़ी है जी ना जी लास्ट टाइम, ठीक है। जी और हिसान की होगी हुस्नुन, ठीक है। जी। तो आप खबर क्या बनाएंगी फिर? अल हुमरु सगीरतुन वल हुस्नु शाबाश, कबीरतुन। वेरी गुड। आपने मुब्तदा की रियायत की और अलिफ लाम लगाना नहीं भूली। वेरी गुड, माशाल्लाह, वेल डन। कॉन्सेप्ट अच्छा है आप लोगों का। थैंक यू मिमाज। जज़ाकल्लाह। आइए, तहसीन अफशां। तुम्हें सलमा, आपको कुछ फिर पूछना है? आपका हैंड रेज है स्टिल। जिनकी टर्न हो गई है वो हैंड डाउन कर लें। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि तहसीन। वबरकातुहू। जी, तहसीन। जी आपको अभी तक कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि हम नकरा जी इस्म को कैसे बनाते जी हैं? जी जी अल, मैम अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह लगा अलिफ। के जी जी। और मारफा हम क्यों बना रहे हैं यहाँ नकरा इस्म को? अ, किस खास वजह करने से के लिए। है? खास करने के खास। लिए। हाँ जी खास करने के लिए कि हम किसी खास कुर्सी की बात हो रही है जो आपके जी सामने जी। है इस वक्त, ठीक है। हाँ जी और
दूसरा रीजन ये है कि अगर हमने उसको मुब्तदा के तौर पर इस्तेमाल करना है तो भी फिर हमें उसको मार्फा बनाना पड़ेगा अलिफ लाम लगा के, है ना। जी जी। यहाँ पर अगर हम उसको मुब्तदा के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, जी जुमला क्या लिखा है? अल कुर्सी हाँ मकसूर, जी, क्या तर्जुमा होगा? कुर्सी टूटी हुई है। कुर्सी टूटी हुई है, शाबाश। आगे चलिए। अल माउ बारिदुन, पानी हम्म, ठंडा है। पानी ठंडा है। आगे। अल कमरु जमीलुन, चांद हम्म, खूबसूरत है। चांद खूबसूरत है। अब देखिए, अल कमरू के साथ जमीलतुन नहीं आया, जमीलुन आया। हमें क्या पता चला कि चांद मुजक्कर है। एक, जी मुज़क्कर है। ठीक है, उर्दू में मुजक्कर है मुअन्नस है? उर्दू में मुज़क्कर ही हाँ जी, मुजक्कर ही है। चंदा मामा हम लोग बच्चों को सुनाते हैं ना, है। मुजक्कर जी ही जी। है। जी हाँ। चलें आगे पढ़ें। अल बैतु करीबुन वल हम्म। मस्जिदु बाइदुन, घर हाँ जी, करीब है और मस्जिद दूर है। दूर है। जी अच्छा ठीक है। अब मैं आपसे कहूं जी कि जो यहाँ पर वल मस्जिदू है, जी। इसको जमा कर दें और जुमला मुकम्मल करें। अल मसाजिदु, हम्म। मसाजिद गैर हम्म। बाइदातुन आएगा। वेरी गुड। बाईदतुन। जी। ठीक है, शाबाश, ठीक है। कॉन्सेप्ट आपका भी क्लियर है। अगला जुमला भी पढ़ दें। अल हजरु सकीलुन वल वरकु खफीफुन, पत्थर हम्म। भारी है और सफा हल्का है। सफा हल्का है। वरक की जमा क्या होती है? और आख, औरा। अब इसको कर दीजिए जमा करके और मुब्तदा खबर कंप्लीट। अल औराकु खफीफतुन, हाँ, वल औराकु वल खफीफ। औराकु, हाँ जी, वल औराकु खफीफतुन। माशाल्लाह, वेल डन। बहुत अच्छे। आइए, राना जी, जी राना इरशाद आइए। जी, हाँ क्या लिखा है? जी। अल लबनु हारून, हम्म। दूध गर्म है। दूध गर्म है। और आगे? अल कमीजु नजीफुन, कमीज हम्म। साफ है। कमीज साफ है, ठीक है। अब अल कमीसों की जमा कर दीजिए, मुब्तदा को जमा में कन्वर्ट कर दीजिए। क्या होती है कमीज की जमा? कमाइजु कमाइजु कुमसानुन। क्या थे? ठीक है। इंसानी। अच्छा, हाँ जी, कमीज की जमा होती है कुमसानुन। अब इसको मुब्तदा बनाकर जुमला मुकम्मल कीजिए खबर के साथ। अल कुमसानुन नती नजीफतुन, फिर से बताइए, फिर से पढ़िए, क्या गलती हो अल रही है आप? अल कुम अल कुमसानु हाँ, शाबाश। नजीफतुन। नजीफतुन, पहले में आप तनवीन बोल गई थी ना। जब आपने जी जी। अलिफ लाम ऐड करना है तो फिर तनवीन हटा देनी है। अल कुमसानु नजीफतुन, कमीज साफ हैं। ठीक है, अब कमीज कमीसें साफ हैं, उर्दू में हम इस तरह इसका तर्जुमा करेंगे। जी क्लास, तो अभी हमने आज क्या समझा कि जब हम इस्म को देखते हैं तो इस्म दरअसल वसत के एतबार से दो तरह का होता है। कौन कौन से किस्म होती है बताइए मुझे। पर और नकरा। मार्फा और नकरा, वसत के एतबार से दो तरह का, ठीक है। नकरा आपको बहुत सारे अस्मा, ज्यादातर आपको नकरा नजर आएंगे, जबकि मार्फा बहुत कुछ अस्मा होते हैं जो जी मार्फा ऑलरेडी हम उनको कंसिडर करते हैं, वरना जी आपको नकरा इस्म को अलिफ लाम लगा कर ही मार्फा बनाना पड़ता है। ठीक है, हर इस्म जी। बुनियादी तौर पर नकरा होता है, फिर आप उसको मार्फा बनाते हैं। लेकिन अरबी जबान में कुछ ऐसे अस्मा हैं जो मार्फा ही कंसिडर किए जाते हैं। अगर मैं यहाँ पर, आपका नाम क्या है? राना। राना। जी अगर मैं यहाँ लिखूं राना, जी। मुझे बताइए, इसको आप मार्फा कहेंगी? इसमें है ना ये,
या फिर ये नकरा शुमार होगा? ये मार्फा है, ये इसम अलम में आएगा ना, नाम का। शाबाश, ये मारिफा शुमार होगा। क्यों मारिफा शुमार होगा? क्योंकि ये इसमें अलम है। इसमें अलम होता क्या है? किसी खास चीज का नाम, शख्स का नाम, शाबाश। या और जगह का नाम। किसी जगह का नाम। जी खास शख्स, जगह या चीज के नाम को आप इसमें अलम कहती हैं। राना, फातिमा, जैद। ठीक है, ये तो नाम हो गए आपका, हमारे सारे नाम। शहरों के नाम हो गए, मक्का, ठीक है, मदीना, जी ये सारे मारफा कंसिडर किए जाएंगे। ठीक है। अच्छा, जी आपको इसको अलिफ लाम लगा के मारफा नहीं बनाना पड़ता। दूसरी कोई किस्म आपको ऐसी मारफा की याद है जो आप कहेंगे उसको हम बगैर अलिफ लाम लगाए ही मारफा कंसिडर करते हैं? जी, वो हमने अभी पिछली क्लास में पढ़ा था, इसमें इशारा, वो भी मार्फा है। शाबाश, बहुत करीब अच्छे, का, वेरी गुड। बैद का। इस अस्माए इशारा, जितने भी अस्माए इशारा हमने पढ़े थे वो जी सारे के सारे मारिफा हैं। ठीक है। जी तो हमने इस चीज को याद रखना है, ओके, जी। कि ये सारे मारफा अस्मा हैं। और कोई आप कहेंगी कौन और सा मारफा है? इसमें इसमें चले हम ऐसा मौसूल भी करते है हैं, ना, ठीक है, अल्लजी, और अल्लजानी वाला, इसमें मौसूल, वो भी हम्म, मार्फा है। वेरी गुड, वो भी मारफा और है। हम फरजाना को बुलाते हैं राना। थैंक यू। जी आइए फरजाना, म्यूट कर लीजिए राना और हैंड डाउन कर लीजिए। जी, अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो अभी तक हमने मारफा अस्मा कौन कौन से देखे? दो जो अभी राना ने बताए। एक तो इसम मौसूल और एक इसम अलम, इसम इशारा। तीन हो गए, ठीक है। जी इसमें अलम जिसमें सारे नाम आ जाते हैं। जी अस्माए इशारा, आपने आराम से बईद और करीब के सबके इशारे आप लोगों को याद हैं। और फिर अस्माए जी मौसूल, ठीक है। कौन कौन से होते हैं अस्माए मौसूल? अल्लजी, अल्लती, अल्लजीना, ये सारे जो आपने पढ़े होंगे। इसके अलावा आपको याद है कोई और? ये जी तो हमारे पास हो गए। जी, मुअर्रफ और बिल कौन लाम से? है। मुअर्रफ बिल लाम है। मारफ बिल्लाम, ठीक है, चलें, चार हो गए। और जी क्लास। तो हमारे साथ इस वक्त कौन है? अर्जुमंद। जी अर्जुमंद, हम क्या डिस्कस कर रहे थे कि कौन कौन से अस्मा मारफा होते हैं, ठीक है। तो हमने कौन कौन से अस्मा देखे अभी मारफा होते हैं? इसमें अलम, इसमें इशारा, इसमें मौसूल, और मारफ बिलाम, यानी नकरा इसम को अलिफ लाम लगाकर मारफा बनाना। और कोई आपको आता है तो बताइए, कोई और आपकी नॉलेज में है, आप कर सकती हैं तो बताएं। हमने और क्या क्या आपने पढ़े हैं जो आपकी टीचर ने आपको बताया होगा ना कि ये मारफा होते हैं? अच्छा, चलिए, आइए जिल्ले हुमा। जी उस्ताद, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम जी। जो नाम मैंने लिए उसके अलावा कोई और आपके जहन में है मारफा इसम? नहीं, यही वाले हैं। अच्छा, ठीक है, चलें। हमने जमायर भी तो पढ़े थे ना? हाँ, तो वो उन्होंने कह नहीं दिया, वो इसम अस्माए मौसूल जो है, अल्लाह वो जीना तो और वो वो तो ओके जमायर नहीं ओके, है ना, सॉरी। वो तो यस अस्माए यस यस मौसूल यस है। यस हुआ यस, हुआ हुमा हुमा। हुम, जी, हिया हुआ हुमा हुमा हम। हुन्ना। जी जी, अस्माए एग्जैक्टली। जमायर, हाँ। ये भी मारफा होते हैं। ये वो अल्फाज हैं जो किसी इस्म की जगह जी इस्तेमाल होते हैं ना। हुआ, हिया है ना, जी अंता, जी जी अंती, अना, नहनु। जी जी तो जी ये भी मारफा होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास टोटल कितने हो गए? जी जो हमने अब तक पढ़े, छः, ठीक है। छः जी फिलहाल के लिए। वैसे इसमें और जी मजीद बल्कि शायद पांच हुए हैं। इसमें मजीद भी दो और होते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए आप बस इतना याद रखिए। फिर जी इंशाल्लाह आगे जब आप लोग वो टॉपिक्स पढ़ लेंगे तो फिर हम उनको भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलें, क्या सवाल लिखा हुआ है पहले? ऊपर लिखा हुआ है तमारीन, हम्म। तमारीन। हम्म। और इकरा व अक्तुब माज। हम्म। हम्म। जी, आवाज आ रही है मेरी? जिल्ले हुमा, आपकी आवाज गायब हो गई। हाफिजा नाजिश,
जी बाजी, अस्सलाम वालेकुम। जी आ जाइए, जी दोबारा पढ़ूँ पढ़िए। उस्तादा? बाजी जी कहाँ से पढ़ना है? इकरा। अच्छा जिले हुमा, आपकी आवाज असल में चली गई थी, चलें पढ़ें, दोबारा पढ़ें। जी इकरा व अक्तुब मा ज़ब्ती अवाखिरिल कलिमाती। इकरा वक्तुब, ये अलिफ जो है ये हमजतुल वस्ल है, इसको आप नहीं पढ़ेंगी। इकरा वक्तुब, जी तो जी ये क्या कह रहे हैं, पढ़िए और लिखिए। और लिखिए। क्या करते हुए लिखना है? कलिमात के आखिर को सही हरकत देते हुए मुकम्मल करना है इसको। सही जी से इसकी वो आपने शक्ल बनानी है, ठीक है। ठीक। आप देखिए आगे जितने भी अस्मा हैं वो किसी पर भी हरकत नहीं लगी हुई जी उनके आखिर में, है ना। जी जी आपने करेक्ट हरकत लगानी है। अब आप देखें आप कितना समझिए, इसको लगाइए। पहला इसम क्या है? जी मस्जिद, मस्जिदुन। शाबाश, करती जाएं। आगे अल मस्जिद, अल मस्जिद, अल मस्जिदु। हम्म, अल माउ, हमजा शाबाश, पे फिर माउन। गुड, अल बैतु, शाबाश, बाबुन, हम्म, कलमुन, हम्म, अल कलमु। शाबाश, बस रुक जाइए। तो अब आपने देखिए कहीं पर आपने तनवीन लगाई है और कहीं पर आपने सिंगल हरकत लगाई है, क्या वजह है जिले हुमा? जब मारफा। आवाज चली गई हुमा की। चलिए आइए हाफिजा जी नाजिश। बाजी। हाँ मुझे बताइए, कहीं पर जिले हुमा ने तनवीन लगाई और कहीं नहीं लगाई, क्या रीजन था बाजी इसका? मस्जिद नकरा है, कोई कोई मस्जिद हो सकती है, कोई मस्जिद, और अगर अल हमने लगा दिया, उसे ठीक मुअर्रफ है, में लाम लगा दिया, तो वो एक मार्फा कर खास दिया मस्जिद तो। होगी, अल मस्जिदु। हाँ, तो इसी वजह से आपने तनवीन हल्की कर जी दी है ना, तनवीन अलिफ ड्रॉप हो लाम गई। दाखिल किया ना। जी अलिफ लाम ठीक आने है, की वजह से। शाबाश। चलिए अगली लाइन कंप्लीट करें आप। हरकत लगाएं। हाफिजा, आपने अनम्यूट करें इसको, ध्यान करें ना। जी बाजी, वो मैं कह रही थी, जी वो ऑप्शन कोई याद था। बात नहीं, हरकत लगाएं। अब ये अल कल्बु, अल कल्बु, हम्म, कल्बुन, ठीक है, और इसके बाद शाबाश, कमीसुन, हम्म, वलदुन, अल हम्म, अल हजरु, अल शाबाश, वलदु, हम्म, हिमारुन, अल हम्म, हिमारु, अल हम्म, हिस्कानु, हम्म, हिस्कानुन। वेरी गुड। तो अब हमें ये क्लियर हो गया कि जब नकरा इस्म होता है तो उस पर तनवीन आएगी, और जब हम उसको मारफ बिल्लाम करेंगे यानी अलिफ लाम दाखिल करेंगे तो आप तनवीन को हल्की कर देंगी, उसको मारफा बना यस। देंगी। ठीक है, ये जी हमने एक बेटे। बेसिक बात आज दोहराई, थैंक यू। नाजिश आइए, शीरी। जी उस्ताद, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जी क्या सवाल है आगे? अल मुदर्रसु जदीद। ये उस्ताद ये सेकंड है। आपने सवाल नहीं पढ़ा। नहीं, सवाल पढ़िए सबसे पहले, ऊपर क्या लिखा हुआ इक़रा, है ब्लू में? इक़रा वक्तुब। इक़रा वक्तो, पढ़ो और लिखो। क्या है पहला जुमला? अल मकतबु मकसूरुन। तर्जुमा। डेस्क टूटी हाँ है। जी, मेज टूटी हुई है। अल मकतबू की जमा बना दें, मुब्तदा को जमा बनाएं। अल मकतबु की जमा मकतबूना, गैर आकिल है। मकतबूना तो दादा नहीं इसकी होती। जमा क्या होगी? मकातिबुन। इसकी जमा कातिबुन। अल हम्म, मकातिब मकसूरतुन। फिर से बनाइए जुमला, फिर से पढ़िए। अल मकातिबु। हाँ, हरकत पूरी आपने प्रोनाउंस करनी है ना, साउंड आनी चाहिए। अल मकातिबु। मकसूरतुन। गुड। क्यों आप लेकर आई वाहिद मुअन्नस खबर में? उस्ताद ये गैर आकिल की जमा है, इसीलिए हम खबर गैर वाहिद। आकिल है, शाबाश, ठीक है, आगे चलिए। अल मुदर्रिसु जदीदुन। हम्म,
शाबाश। तर्जुमा। मुदर्रिस टीचर नया है। ठीक है, अब मैं अगर आपसे कहूं कि इसको मोनस बना दें जुमले को, कैसे करेंगी? अल मुदर्रसतु जदीदतुन। अल मुदर्रिसतु, ठीक है, जी। अल रा के नीचे जी। मुदर्रिस जदीदतुन, ठीक है, टीचर नई हैं। शाबाश, वेल डन, बहुत अच्छे। आइए रुमैसा आबिद। थैंक यू शीरी। म्यूट कर लें और हैंड डाउन की कर वॉइस। लें। जी वॉइस आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। चलें अगले दोनों जुमले पढ़ने रुमैसा। जी मैम। मैम अल कमीसु वसीखुन। हम्म कमीज गंदी है। तर्जुमा। शाबाश। जी मैम। और अल लब अल एक मिनट क्लोजिंग करती हूँ। जी अल लबन बारिदुन। दूध ठंडा है। हम्म दूध ठंडा है, वेरी गुड, शाबाश। आ जाइए शाजिया, थैंक यू। शाजिया आ जाएं, अगले दोनों जुमले जी पढ़ दें। अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम सलाम। बाजी अल हम्म मस्जिदु मफ्तूहुन। म- शाबाश। मस्जिद खुली है। हम्म ये अल मस्जिद नकरा बना हुआ है ना, इसमें मारफा है अल्लाह के। बिल्कुल, मुब्तदा तो मारफा ही होगा। जी। मुब्तदा है तो डेफिनेटली मारफा होगा। जी अगला जुमला पढ़िए। अल लबनु बारिदुन, दूध ठंडा है। ये इधर देखिए, नंबर 6 जी बाजी सामने सॉरी। पढ़िए। नंबर अल 6। हजरु हम्म कबीरुन, पत्थर बड़ा है। हम्म पत्थर बड़ा है। अगर मैं कहूँ, आप कहें पत्थर छोटा है, क्या करेंगी? अल हजरु कसीरुन। नहीं, छोटा। छोट छोटे को क्या कहते हैं? छोटे को अकबर बड़ा होता है, अकबर बड़ा होता है और असगर छोटा होता है। असगर छोटा, ऐसे ही है जी ना? हाँ जी तो असगर क, आएगा। अल तो हजरु कबीरुन असगर। का क्या होगा? नहीं, कबीरुन का क्या होगा? कबीरुन बड़ा। तो इस पे छोटे का कैसे बनाएंगी आप? इसी वजन पर बनाइए ना, छोटा। सगीरुन। सगीरुन, जी बाजी। हाँ ठीक है, अल हजरु सगीरुन। ठीक है। सगीरुन। अब मैं कहूं कि पत्थर अ, हल्का है। खफीफुन, अल हजरु खफीफुन, हाँ जी, खफीफुन। शाबाश। ठीक है, जी। हल्का जी। है। ओके, गुड हो गया। और अगर मैं कहूँ वजनी है? वजनी का बाजी। हमने पीछे क्या पढ़ा था? अल हजरु सकीलुन, सकीलुन है ना? वजनी, हाँ जी। वजनी है, ठीक है। जी शक्ल से ना हाँ सकीलुन, जी, जी। तो मारफ बिल्लाम के जरिए आप मुब्तदा को मारफा करके और जुमले को मुकम्मल कर रही हैं। माशाल्लाह, बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छे। चलें नेक्स्ट हम जी। देखते हैं। फरजाना कौसर, आ जाइए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी पढ़िए अगले दोनों जुमले। अल मुहदिसुन जालिसुम वल वल देखिए, वल ये 7 नंबर पढ़िए पहले, 7 वल और 13। मुदर्रिसु वाकिफुन। हम्म जी अच्छा अच्छा, इधर से हम्म ठीक है। अल लबनु बारिदुम हम्म वल माउ हारुन। हम्म अ, दूध गर्म है और हम्म। पानी ठंडा है। उल्टा कर दिया आपने। दूध ठंडा है और पानी गर्म है। हाँ जी, हारुन। ठीक है। कितने जुमले नजर आ रहे हैं आपको यहाँ पर? यहाँ पे दो। 2 जुमले हैं, ठीक है। पहला जुमला कहाँ से कहाँ तक है? अल अल लबनु बारिदुन, ये एक जुमला गुड, है। ठीक है, और दूसरा है अलमाउ हारुन। वेरी गुड। और ये जो बीच में वाव है, इसको क्या कहते हैं ये हम? ये कौन सा वाव होता है? आ, ये मैंने पढ़ा हुआ है लेकिन। वाओ। बहुत मौसूला। आसान। नहीं नहीं, मौसूला। ना, ये वाव अतफ कहलाता है, ठीक है। अतफ। जी हाँ जी। जी, ये वाव अतफ कहलाता है। अतफ। तर्जुमा आपने और से किया ना। जी जी जी। दूध ठंडा है और पानी गर्म है, गरम। याद रखिए, ये वाव अतफ जी कहलाता है, जी। ठीक है। और ये तरतीब के लिए लगाया जाता है कि दूध ठंडा है और पानी गरम है। गर्म है। अगर मैं इस जुमले को पीछे लेके चली जाऊं, जी पानी ठंडा है और दूध गर्म है, जी। तो भी कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा ना? नहीं 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 पड़ेगा ना? क्यों नहीं नहीं। पड़ेगा? इसलिए कि बीच क्योंकि में वाव है।
جی جی اگر یہاں بیچ میں فا یا پھر سما ہوتا نا، پھر آپ جی اس جی جملے کو آگے پیچھے نہیں کر سکتی تھیں. جی یاد رکھیے، یہ صرف واؤ کی وجہ سے ہم یہ آرام سے کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، بہرحال آپ نے صرف یاد یہ رکھنا ہے کہ اس واؤ کو ہم عطف کہتے ہیں اور یہ ترکیب کے لیے لایا جاتا ہے. اگلا جملہ بھی پڑھ دیں. المحدث جالس والمدرس واقف. مدرس. مدرس. ہم جی مہندس انجینئر. طالب علم کو کہتے ہیں. جی انجینئر. انجینئر. انجینئر بیٹھا ہے اور ٹیچر کھڑا ہے، شاباش. اور استاد استاد کھڑا کھڑا ہے. ہے. ویری گڈ فرزانہ. آئیے زوبیہ. السلام علیکم جی ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی زوبیہ کمپلیٹ کر دیں اگلے دونوں. جی القمر بعید، ہم چاند دور ہے. ہم المندیل نظیف، رومال ہم صاف ہے. رومال صاف ہے. چلیے مندیل کی جمع بنا دیں. مبتدا کو جمع کر دیں اور جملہ مکمل کریں. اچھا المندیل، مجھے مندیل کی نہیں، جمع کیا ہوگی؟ جمع مجھے نہیں آ رہی ہے اس کی. کوئی بات نہیں، میں لکھ رہی ہوں، دیکھیے منادیلن. منادیل. اچھا ٹھیک ہے، المنادیل شاباش. نظیفت، نظیفت. ویری گڈ. المنادیل نظیفتن. کیوں لے کر آئی واحد مؤنث کی خبر آپ؟ غیر عاقل ہے، اس کے لیے جو ہے واحد مؤنث کا آئے گی. غیر عاقل کی جمع آ گئی تو اب آپ واحد مؤنث کی خبر لے آئی. ٹھیک ہے. اور معرفہ اسما آپ نے ابھی بتائے ہیں معرف باللام لگا کر. اس کے علاوہ اور کون کون سے اسما معرفہ ہوتے ہیں؟ جی اسم علم بھی معرفہ ہوتا ہے، اسم اشارہ، اسم ہم موصول اور معرف ہم باللام اور اسم ضمیر. شاباش. 5 ہم نے دیکھے کہ یہ معرفہ ہوتے ہیں. ویری گڈ. آپ نے یاد رکھنا ہے کہ آپ کو اگر کہیں پر الف لام کے بغیر اس میں علم نظر آ رہا ہے یا اسماء ضمیر، اسماء اشارہ، یہ بھی معرفہ ہی کنسیڈر کیے جاتے ہیں. گڈ ہو گیا ماشاء اللہ. آئیے صبا ارسلان. تھینک یو زوبیہ. جی السلام صبا. علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام. سوال پڑھیں. املاء الفراغ فيما ہم فيما يلي ہم بوضع الكلمات ہم المناسبات من الكلمات تالیتی. الطالبات. یعنی ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے تالیت فل ان دا بلینکس، میم وہ فراغ جو ہے، خالی جگہ جو ہے، اس کو بھرنا ہے. اس کو کمپلیٹ کرنا ہے، ہاں جی، جملے کو اس کو کمپلیٹ کرنا بھرنا ہے. جو ہمارے پاس اوپر انہوں نے اسما دیے ہوئے ہیں، ہے. مناسب سلیکٹ کریں اس میں سے اور لگاتی جائیں، جملہ مکمل کرتی جائیں. چلیں کریں. الحجر ہم پتھر ثقیل شاباش. ٹھیک ہے. ہلکا ہے. نہیں بھاری. الب ثقیل کہا نا آپ نے، بھاری ہے. جی ٹھیک باری ہے سوری. آگے. ہم الباب مفتوح. ہم ٹھیک ہے. القمر ترجمہ بھی کرتی جائیے ساتھ. الباب مفتوح. ترجمہ. دروازہ کھلا ہے. ٹھیک ہے. القمر خفیف. قمر ہلکا ہے. نہیں میم، چاند کیا ہوتا ہے؟ میم القمر جمیل، ہاں چاند جی، خوب. چاند خوبصورت ہوتا ہے نا. آپ اس کو جمیل پہ لے کے چلی جائیں گی. ٹھیک ہے. پھر آگے. الورق اس کا آئے گا کہاں جائے گا یہ؟ ورق کیا ہوتا ہے؟ صفا. بھاری ہوتا ہے، صفا. ہلکا ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ میم یہ خفیف ہلکا. ہاں جی، یہ خفیفن پہ چلا گیا. ٹھیک ہے. المندیلو. المندیل رومال اور ہم وسیع. شاباش. رومال گندا ہے. آگے. اللبن ہار، ہم دودھ گرم ہے. دودھ گرم ہے. ٹھیک ہے. تو آپ نے مناسب الفاظ اوپر سے سلیکٹ کیے اور ان کے جملے بنا دیے. اور الحمدللہ آپ لوگوں کو جملہ اسمیہ کا کانسیپٹ، اس کے اجزاء، اس کی مطابقت، یہ سب چیزیں ماشاءاللہ آپ لوگوں کو اچھی طرح سے پتہ ہے. جی ہادیہ آئیے. تھینک یو صبا. جی السلام علیکم. جی ہادیہ پڑھیے. یہ سوال کیا ہے؟ املا املا الفراغ فيما يلي بوضع كلمة مناسبة.
fill in the blanks in each of the हम्म following sentences with a suitable word. हाँ जी, हाँ, कलिमतिन मुनासिबतिन, कि आपने मुनासिब कलिमे से भरना है इन तमाम ब्लैंक्स को। अब देखिए ऊपर जो आपने ब्लैंक्स भरी वहां पर खबर भरनी थी, आपको खबर रखनी थी, मुब्तदा मौजूद था। अब यहाँ जो ब्लैंक की जगह खाली है, ये दरअसल आपने यहाँ मुनासिब मुब्तदा लगाना है, और खबर हमें नकरा नजर आ रही है ऑलरेडी। जी शुरू कीजिए आदिया। नजीफन अल मिंदीलु नजीफन। ठीक है, रुमाल टू पे साफ। आइए। जी, रुमाल साफ है। हम्म डैश हम्म डैश मकसूरन अल कलमु मकसूरन। शाबाश। कलम टूटा हुआ है। हम्म डैश बारिदुन अल माउ बारिदुन। पानी ठंडा हम्म है। हम्म डैश करीबुन अल कमरु करीबुन। चांद करीब है। अच्छा चले, जुमला बिल्कुल सही है, कायदे के हिसाब से चांद करीब है, ठीक है। और डैश बईदुन अल बाबू बईदुन। दरवाजा दूर है, ठीक है, दरवाजा दूर है जी। ठीक है। डैश वाकिफुन अल हम्म रजुलु वाकिफुन। ठीक आदमी है, खड़ा हुआ है। शाबाश। डैश जालिसन अल वलदु जालिसन। लड़का बैठा हुआ है। हम्म डैश हम्म कबीरुन हम्म अल हिसानु कबीरुन। अ, घोड़ा बड़ा वेरी है। गुड, घोड़ा बड़ा है। डैश कदीमुन अल मुदर्रिसु कदीमुन। उस्ताद पुराने हम्म हैं। हम्म डैश जदीदुन अल किताबु जदीदुन। किताब नहीं है। शाबाश, किताब नहीं है, परफेक्ट। अब आपने यहाँ मुब्तदा दाखिल करना था, और आपने तमाम नकरा अस्मा को अलिफ लाम लगाकर मारफा किया, क्योंकि मुब्तदा का मारफा होना लाजमी है। वेरी गुड हादिया, माशाल्लाह। आइए उम्मे सलमा। जी उम्मे सलमा, आपको मैंने रिक्वेस्ट भेजी है। ओके, अब अगला हमारा जो सवाल है यहाँ जदीदा की, ये तमाम कलिमात हम अभी सबक में पढ़ चुके हैं, और आप लोगों की वोकैबलरी में इजाफा हो गया है। आगे जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज इन्होंने समझाने की कोशिश की है हम लोगों को। जी वालेकुम सलाम। जी सलमा, आपका हैंड रेस था, कुछ पूछना था आपको। हु इज दिस? चलें, अब देखिए आगे लिखा हुआ है नजमुन, और उसको मारुफ बिल्लाम किया गया है अन नजमू से। हमने यहाँ समझना ये है कि जब हम बैतुन में मारिफ बिल्लाम दाखिल करते हैं, और जब इसको आप अलिफ लाम के साथ प्रोनाउंस करते हैं, तो अल बैतु लाम की साउंड आती है, अल बैतु। जबकि देखने वाली बात यह है कि जब नजमुन पर आपने अलिफ लाम दाखिल किया है, तो लाम की साउंड नहीं आ रही, बल्कि डायरेक्ट आप अलिफ से नून पर जा रहे हैं। अन नजमु, लाम यहां पर साइलेंट है, ठीक है। इसी तरह आगे देखिए, रजुलुन अर रजुलु, दीकुन अद दीकु, तालिबुन अत तालिबु। ये क्या सिलसिला है, ये हमें समझना होगा। कौन बताएगा मुझे ये ऐसा क्यों है? आइए शीरी, अतिया भी आ गई हैं हमारे पास, चलें हम अतिया को बुलाते हैं। अतिया की बारी नहीं आई है, अतिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी अतिया, यहाँ पर हम अलिफ लाम क्यों नहीं, लाम की साउंड क्यों नहीं निकाल रहे अन नजमू में, जैसे हम अल बैतू में निकालते हैं? क्या अन रीजन है? नजमु, ये हमजतुल वसल है, ये हर शमसिया हुर्फ है। हाँ, हमजतुल वसल तो है, हमजतुल वसल की तो बात ही नहीं हो रही। मैं जी, आपसे ये पूछ रही हूँ, कौन सा हर्फ है ये? शमसिया। शमसिया, अच्छा। बिल्कुल, देखिए अल जो हम मारुफ बिल लाम लगाते हैं किसी भी इस्म के साथ, इसमें लाम की अदायगी कभी की जाती है, और कभी लाम सिर्फ लिखा हुआ हमें नजर आ रहा होता है, लेकिन उसका तलफ़ुज़ नहीं किया जाता, उसकी साउंड नहीं निकाली जाती। ठीक है, जैसे आपने पढ़ा
अल बैतु या फिर अन नजमू। इसको हम याद रखने के लिए अल कमरु और अश शम्स। शम्सु, ठीक है, इसी लफ्ज को जी। देख। अरबी जुबान में दो कैटेगरीज हैं, शमसी हुरूफ और कमरी हुरूफ। यानी हुरूफुल हिजा जो हम पढ़ते हैं उनको हम दो तरह से तकसीम करते हैं। कमरी हुरूफ पर किस उसूल का इतलाक होगा कि उसमें अलिफ लाम पढ़ा जाएगा, ठीक है। अल कमरू में देखिए अलिफ लाम की आवाज आ रही है ना, लाम की आवाज, सॉरी, लाम की आवाज आएगी, ठीक है। और शमसी हुरूफ में लाम की आवाज नहीं आती, मौजूद तो होता है लेकिन उसका तलफ़ुज़ नहीं किया जाता। तो ऐसे तमाम अस्मा जिसमें लाम मौजूद तो है लेकिन उसका तलफ़ुज़ नहीं किया जा रहा, साउंड नहीं दी जा रही, वो शमसी हुरूफ कहलाएंगे, ठीक है। और जहां पर आप लाम को पढ़ रही हैं वो कमरी हुरूफ कहलाए जाएंगे। आप लोगों को एक जुमला याद रखने की जरूरत है। आई एम श्योर आप लोगों को याद भी होगा। आपको पता है वो जुमला कौन सा है जिससे हम कमरी और शमसी हुरूफ पहचानने की आसानी करते हैं? जी, अतिया, आप जानती हैं? जी। जी। जी बताइए वो जुमला कौन सा है। हाँ। ये देखिए मैं क्या लिख रही हूँ। हक का हाँ, खौफ, का खौफ अजीब गम है। अजब गम है। अजब गम है। हाँ जी। जी। ये जुमला अगर आपको याद है तो इससे कौन से हुरूफ की पहचान होती है, शमसी की या कमरी की? ये वाले खमरी वाले। हाँ जी। आपने इस जुमले को याद रखना है और फिर आप देख लेंगी कि अगर इन तमाम हुरूफुल हिजा में से कोई हर्फ मौजूद है अलिफ लाम के बाद तो इसका मतलब है वो कमरी हर्फ है। यहां पर आप देखिए अलिफ लाम के बाद नून मौजूद है। अब इस जुमले में कहीं नून नजर आ रहा है, हक का खौफ अजब गम है? नहीं नजर आ नहीं, रहा नून, नहीं नहीं है। नजर आ रहा ना, तो इसका मतलब है कि ये कमरी नहीं है, ये ये शब्द शमसी है। जी। हाँ, तो ये जुमला अगर आपको याद रहेगा तो आपको बहुत आसानी से पहचान करने में सहूलत रहेगी और आप भूलेंगी नहीं। अब देखिए इन्होंने पूरी जुमला इस्मिया यहाँ लिखे हुए हैं, शमसी और कमरी हरूफ की इन्होंने यहाँ मिसालें दी हुई हैं। पढ़ती जाएं और तर्जुमा करती जाएं। अन जी। नजमो बाईदुन, हम्म। सितारे दूर है। सितारा अर दूर रजू है। दूर, सितारा दूर है। अर हाँ। रजुलु वाकिफुन, हम्म। आदमी खड़ा है। अब शाबाश, मुझे बताइए अन नजमु और अर रजुलु शमसी है या कमरी है? शमसी हर्फ है। शमसी है, परफेक्ट, आगे चलिए। असुकरु हुलवुन, हम्म। शक्कर मीठा है। हम्म। मीठी है। जी। मीठी है। अत्तालिबु मरीदुन, हम्म। तालिब बीमार है। हाँ जी, ठीक है। यानी स्टूडेंट, तालिब इल्म बीमार है। बीमार है। इसमें बताइए शमसी है कमरी है? शमसी है। ये भी शमसी है, शाबाश। आइए मिसेस कादरी, एम कादरी, अतिया, अस्सलाम थैंक यू। वालेकुम। वालेकुम सलाम। अब देखिए आप आगे, आपको तमाम ये जो हमें जुमले नजर आ रहे हैं 5 से लेके 10 तक, अद्दीकु जमीलुन, अद्दफ्तरु जदीदुन, इसमें मुझे बताइए कोई कमरी हुरूफ आपको नजर आ रहे हैं? अल वलदु। अल वलदु, शाबाश। क्यों आपने इसको कमरी कहा? क्योंकि इसमें लाम पढ़ा जा रहा है मैम। लेकिन आप ये देखिए हमने जो जुमला पढ़ा, हक का खौफ, हाँ उसमें जी। वो- अजब गम है। हाँ जी, ये है ना वाव, जी। ये वाव मौजूद है। बिल्कुल ठीक, शाबाश, इस जुमले से हमने इसको परख लिया। परफेक्ट। अगला नंबर 11 देखिए, इसमें है कोई कमरी? वल मदरसु। हाँ जी, शाबाश, इसमें भी देखिए मीम, ये मीम यहाँ गम, जी। ठीक है। परफेक्ट। बाकी जी। जुमले आप लोगों को सबको पता है, हम बहुत दफे इसको तर्जुमा भी कर चुके हैं। अत्तुफ़ाहुल अजीजुन का बना दीजिए, तर्जुमा कर दीजिए।
सेब हाँ जी, सेब मजेदार है। टेस्ट, ठीक है, हाँ मजेदार है। सेब मजेदार है। ठीक है, तो आई एम श्योर कि आप लोगों को शमसी और कमरी के भी पहचान में परेशानी नहीं होगी। ये पढ़ लें जल्दी से और हरकत लगाती जाएं। जी हाँ। अलबाबु, अत्ताजिरु, अन्नजमु, अलकमरु, अद्दीकु, अलमाउ, अस्सरीरु, अलबैतु, अलमस्जिदु, अर्रजुलु, अस्सुक्करु, अलवरकु। शमसी हरूफ निकाल दें इसमें से। अम, अत्ताजिरु, हम्म, अन्नजमु, हम्म, अद्दीकु, हम्म, अस्सरीरु, हम्म। अर्रजुलु, अस्सुक्करु। हाँ, अब आपने एक चीज नोट की कि जितने भी शमसी हरूफ हैं सब पे तशदीद है ना। जी डायरेक्ट आपने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया तशदीद के साथ, ठीक है ना। तमाम शमसी हरूफ आपने बिल्कुल सही पहचाने और जो बाकी हैं वो तमाम कमरी हैं, ठीक है। अब आगे जो हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स हैं, हमने फिर इसको जनाब जुमले बनाने हैं, जुमले इस्मिया। और आपने मुनासिब मुब्तदा के साथ इस मश्क को मुकम्मल करना है, ठीक है। और ये अब आप लोगों का जी मैम। होमवर्क है, ये आप लोग खुद करेंगे, राइट। इससे आगे आपने सेलेक्ट करना है, मैच करना है इस ग्रेड को, ये हम कर लेते हैं, ठीक है। चलें, जी इसको आप जरा मैच करें। अत्तालिबु। अत्तालिबु मरीजुन। हम्म, मरीजुन, ठीक अद, है। हमारे अद, सामने जो है हम अद, कोशिश करेंगे कि हम उसी से मैच करें, ठीक है। अद्दुकानु। अद्दुकानु मफ्तूहुन। शाबाश, अत्तुफाहु लजीजुन। परफेक्ट। अलमाउ हारुन। हम्म, अलहजरु सकीलुन। शाबाश, अलकलमु मकसूरुन। वेरी गुड। अब आप मुब्तदा और खबर जोड़ के आपने मुनासिब जुमले बना लिए, क्योंकि आपको तर्जुमा और इसकी सारी चीज़ों की समझ थी, अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर फिर इन्होंने ग्रेड दिया है अपनी वोकैबलरी में। अगर आप लोगों ने कोई बनाई है बुक, उसमें लिखती जाएं। याद रखें, एक दफ़ा देख लिया करें डेली, ताकि आप लोगों को तर्जुमा करने में आसानी रहे। अब देखिए फिर अल हुरूफुल कमरियत वल हुरूफुश शमसिया, द मून लेटर एंड द सन लेटर, ठीक है। पूरी लिस्ट है, और जो हमने आप लोगों को जुमला बताया है उसके हिसाब से आप लोग डबल चेक कर सकते हैं। हम इसके अंदर देखते हैं आप लोगों को किसका तर्जुमा आता है। अस्सौबू का क्या मतलब है जी, मिसेस कादरी, एम कादरी, अस्सौबू का क्या मतलब है। अब ड्रेस को कहते नहीं पता मैम। हैं, ड्रेस, ठीक। हाँ, सौब ड्रेस को ड्रेस। कहते हैं, अरबी जी अरबी लिबास होता है ना, कपड़ा, ठीक है, उसको कहते हैं, जी ठीक मैम। है। चले शाजिया आ जाइए, शाजिया आ जाए। जज़ाकल्लाह खैर। जी बाजी। अज़हबु बाजी अज़हबू का सोने को क्या कहते हैं, मतलब है। सोना जो होता है। शाबाश, सोना हो गया, ठीक है। खुब्स खुब्स किसको रोटी कहते को। हैं, रोटी को कहते हैं। अब आपने अलिफ लाम और कहाँ पर कमरी है, कहाँ पर शमसी है, ये इसमें मेंशन हुआ है, आपने इसको डबल चेक करना है जुमले के हिसाब से, ठीक है। ये भी आप लोगों का होमवर्क है। ज़हरा किसको कहते हैं, फूल को बाजी, गुलाब का फूल जो फूल होता को, है। परफेक्ट। गदा किसको कहते हैं, अदा खाने को। हाँ जी, दोपहर के खाने को। दोपहर को, लंच को। हाँ जी, लंच को। समक, समक फिश को। फिश को, मछली की एक किस्म होती है, ठीक है। फम, अल फमू, मुंह को कहते हैं। शाबाश, बिल्कुल ठीक। असदरू, दिल, सदर से। हाँ जी, सीना, हाँ जी, सीना। अज़ईफू, बूढ़ा, ओल्ड जो। नहीं, ज़ईफ नहीं है, नहीं। ज़ईफ और ज़ईफ फर्क है दोनों में। अज़ईफू मेहमान को कहते हैं, मेहमान को जियाफत है ना, हाँ ज़ईफ़ो। ठीक है, हाँ हाँ जी, जी। ठीक है। अच्छा, अल हवाऊ, जी अल किधर हवाऊ क्या है, ख्वाहिशात का।
الہواؤ دیکھیے یہاں پر ہاں خالی خواہشات تو خیر ہم نہیں کہیں گے، آم، اسم ہے دراصل کسی بھی گیس، ہوا، ٹھیک ہے نا، ہوا کو فضا، ریح، ٹھیک ہے نا، جس کو دو ریح، چیزوں کے درمیان کا جو خلا ہوتا ہے نا اس جی کو ہم ہواؤ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، بے تکی چیز کو بھی، جس میں کوئی جی شے باجی، ٹھہرتی نہ ہو، ہر خالی شے، اس کو بھی ہوا کہتے ہیں، بزدل ڈرپوک کو بھی ہوا کہتے ہیں، خالی دل کو بھی ہوا کہتے ہیں، ٹھیک ہے، بہت سارے معنوں میں آتا جی ہے۔ اب جملے میں جہاں پر استعمال ہوں، ہو رہا ہے، کس طرح استعمال ہو رہا ہے، وہاں آپ لوگوں نے خود دیکھنا ہوگا۔ اللحم، اللحم گوشت، گوشت، الیدو، الیدو ہاتھ، ہاتھ، ویری گڈ، پرفیکٹ ہو گیا۔ آگے جو ایکسرسائز ہیں جناب، اس میں یہاں پر بھی پوری ایک لسٹ دی ہوئی ہے، اور اس میں بھی قمری اور شمسی حروف کی پریکٹس ہے، آپ لوگ یہ کریں۔ اگر اس میں آپ لوگوں کو کوئی کنفیوژن ہو تو پھر آپ لوگ مجھ سے پوچھیں۔ اس کے علاوہ بھی اگر آپ لوگوں کو کوئی کنفیوژن ہے تو آپ لوگ مجھ سے سوال کر سکتے ہیں، میں انمیوٹ کر دیتی ہوں سب کو۔ جی، ایک ایک کر کے آئیں، ہینڈ ریز کر کے، اگر کسی کا کوئی کنفیوژن ہے تو مجھ سے پوچھ لیں، ورنہ پھر ہم کلاس ختم کرتے ہیں اپنی۔ کسی کا کوئی کنفیوژن نہیں ہے؟ الحمدللہ، اس کا مطلب ہے کہ آپ لوگوں کو معرف باللام، نکرہ کو معرفہ کرنا، اور معرفہ اسما کون کون سے ہیں، اور شمسی اور قمری حروف جو ہم نے آج کے سبق میں پڑھے وہ آپ لوگوں کو الحمدللہ اچھی طرح سے سمجھ آ گئے ہیں، ویری گڈ۔ تو پھر ہم کلاس کا اختتام کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم۔ جی، یاد ہے ریکارڈنگ سٹاپ کر